Hey everyone, welcome back. Today we are going to experience an amazing and meaningful way of living the life through the eyes of a poet. The title of this poem is Song of the Open Road and the composer is Walt Whitman. But before proceeding further, let us know who is Walt Whitman. He is an American poet and journalist. His lifespan was from 1819 to 1892. He is often called as father of free verse. अब ये free verse क्या होता है? It is an open form of poetry. We observe in many poems particular meter, rhyming scheme, rhythm, always been employed by the poet, but the poem which doesn't have any rhythm or a particular pattern or a musical meter is called as free verse. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम टाइटल को समझते हैं. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये टाइटल मेटाफरिकली कॉन्टेक्स्ट में लिया हुआ है. यहाँ पर ओपन रोड का मतलब कोई रास्ता दरअसल नहीं है, तो ओपन रोड का मतलब है लाइफ, यानी सॉन्ग ऑफ द लाइफ और सॉन्ग ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ. And student, this journey of life is open and it will not come to an end. Whenever we walk on the road takes us to new dimensions. There are many turns, directions, ups and downs, highs and low. You may get crowd of people. Sometimes you will be alone, sometimes you will find yourself alone in the crowd. So likewise our life is also full of new dimensions, new challenges, ups and downs, crowd, loneliness, kaleidoscope of emotions, actions, fun, pain, heartbreaks, joy, spirituality, and what not. So the road is unending. Same goes with our life. It is a continuous process, so one has to go ahead and ahead in his or her path and explore himself or herself and ultimately the world around them. Now, let us learn how Walt Whitman, our poet, is trying to pursue us to lead our life. Stanza number 1. Afoot and light hearted, I take to the open road. In the first line itself, the poet is saying that I have embarked on the journey on the open road afooted. अब यहाँ पर अफूट का मतलब या अफूटेड का मतलब दो तरीके से लिए जा सकते हैं. नंबर 1 बाय वॉकिंग, पैदल चलना, एंड नंबर 2 बाय प्रिपेयरिंग वन सेल्फ टू डू समथिंग और प्लानिंग फॉर इट एज वेल. ओके, यहाँ दो मीनिंग निकलते हैं. एक तो मैं रास्ते पर चल पड़ा हूँ और दूसरा उस रास्ते पर चलने के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी है. सो वॉट ही वॉन्ट टू सजेस्ट इज ही हैज़ बिगन हिज जर्नी ऑफ लाइफ. Further, he is saying that he is light hearted. It means he is not carrying any kind of burden with him, any kind of worries or pressure with him. He is a jolly person and never complains. So he has begun his journey on the open road light-heartedly, and the road is full of limitless opportunity. When you make yourself free from the worries, burdens, and drama of the other people, you start getting an insight, and your vision become clear to see the things which comes into your way. Healthy, free, the world before me, leading wherever I chose. The long brown path before me, leading wherever I choose. Here writer is saying that he is feeling healthy. Means what? He is feeling himself, he is considering himself confident, and free means not pressurized by anything and not pressurized by anyone. He is walking continuously on his open road to meet the world which is before him. But the road is long and brown. What are the adjective used for the road? लॉन्ग एंड ब्राउन. ये जो रास्ता है, यानी ये जो जीवन है वो बहुत लंबा है. हम कहते हैं ना ज़िंदगी बहुत लंबी है. एंड आल्सो ब्राउन. नाउ ब्राउन यानी यहाँ पर कोई कलर डिनोट नहीं हो रहा है असल में. एक्चुअली ब्राउन यानी यू कैन से अ बैरन लैंड, बंजर जिसे कहते हैं. अभी फ़िलहाल ये रास्ता कैसा है? बैरन है, यानी बंजर है.
But by dint of my hard work, poet is saying, by dint of my hard work and devotion, one day I will transform this barren land, barren road into a beautiful and unfading garden. So I am going to make my way. Nobody need to show me, nobody need to guide me. मैं जहाँ चाहता हूँ मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊँगा, और जहाँ जाना चाहता हूँ मेरा रास्ता खुद मुझे पहुँचाएगा. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Further he is saying that he need no good fortune. Fortune means what? Luck, fate, जिसे हम किस्मत या नसीब कहते हैं. Look at the confident students and optimism of our poet. He is considering himself as a good fortune. हम किस्मत यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, हाथों की लकीरों में ढूंढते हैं, माथे पर हम अपनी लकीरों में ढूंढते हैं किस्मत को. ओके लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं खुद एक गुड फेट हूँ, मैं खुद एक गुड फॉर्चून हूँ. वी ऑलवेज सिक ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, गुड लक फॉर गेटिंग आवर वर्क डन और बिकम सक्सेसफुल और टू हैव अ गुड लाइफ. लाइक इन इंडिया हम लोग ढूंढते हैं, चांद तारों में ढूंढते हैं, ग्रहों में ढूंढते हैं, हाथों की लकीर में, माथे की लकीरों पर ये सब ढूंढते हैं. सो राइटर कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ बिकॉज मैं खुद को अपना लक समझता हूँ. एंड ही नीड नथिंग फ्रॉम द आउटर बोनस. ये सब क्या हो गया? आउटर बोनस हो गए. किसी का आशीर्वाद लेना, किसी की ब्लेसिंग्स लेना या गुड लक लेना, ये सब बोनस हो गया जो एक आउटरनल एक्सटर्नल फोर्स है. वॉट ही इज सेइंग, ही हैज़ द कैपेसिटी टू do whatever he wants. Next, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Strong and contained, I travel the open road. Whimper का मतलब क्या होता है? Complain करना. Now here writer is saying that if I have decided to walk on the open road, and that too without any kind of external bonuses like fortune, wishes, so I will be responsible for everything, whether I will succeed or failure. okay जो भी मैंने ये रास्ता चुना है तो इसके फेल्योर के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और सक्सेस के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ. इसीलिए मैं कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी और को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊँगा. आई विल नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. पोस्टपोन नो मोर, यहाँ पर पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? डिले करना. ही इज़ इन मोशन. अभी तक हमें क्या पता चला कि राइटर जो है वो एक्शन में है, वो मोशन में है. एंड ही कंटिन्यूसली वॉन्ट्स टू वॉक ऑन दी ओपन रोड. ही डजंट लाइक टू रिमेन स्टैटिक ड्यू टू हिज फेल्योर, problems that are coming to his life and hampering his progress. So he does not give excuses for not going ahead, and that's why he postpone नो मोर. अगर फेल भी हो रहे हैं, अनसक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो भी राइटर क्या कहते हैं कि मैं अपने रास्ते पर चलता रहूँगा, वेदर आई विल सक्सीड और नॉट. मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा कि चलो अभी मैं हार गया हूँ तो मैं आगे नहीं पढ़ूँगा. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स एंड क्यूरियस क्रिटिसिज्म. इंडोर कंप्लेंट्स का मतलब क्या होता है? सेल्फ डाउट, अपने आप पर यकीन ना करना. आई एम डन विथ इट, आई एम डन विद द सेल्फ डाउट और एनी सॉर्ट ऑफ आउटर इम्पोज डाउट. अगर मुझ पर कोई भरोसा भी नहीं करता है तो भी मुझे फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा खुद पर ज़रूर है. नंबर नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है स्टूडेंट लाइब्रेरीज़. अब लाइब्रेरीज़ के यहाँ पर दो मीनिंग बनते हैं. एक तो हम सभी को पता है कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बुक्स का कलेक्शन होता है, वैरायटीज़ ऑफ बुक्स का कलेक्शन होता है. उसी तरीके से हमारे दिल और दिमाग में, हमारे माइंड और हार्ट में भी कलेक्शन होता है. आपको पता है ये किस चीज़ का कलेक्शन होता है? मेमोरीज़ का. वो मेमोरीज़ अच्छी भी होती है, वो मेमोरीज़ बुरी भी होती है. ठीक है. यहाँ पर दूसरा मीनिंग लाइब्रेरी का है बुकिश नॉलेज. पहला मीनिंग मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, गुड और बैड दोनों हो सकते हैं. नंबर सेकेंड मैंने क्या बताया आपको? बुकिश नॉलेज. नाउ एनालिसिस ऑफ दिस लाइन. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स एंड लाइब्रेरीज. राइटर कहते हैं कि मैं मेरे साथ
ये यादें तो जुड़ी हुई है, लेकिन इन यादों का, भले वो यादें अच्छी हो या बुरी हो, मैं अपनी लाइफ में, अपने मार्ग पर, अपने ओपन रोड पर इसका किसी भी प्रकार से असर होने नहीं दूंगा. आई एम डन विद द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, आई एम डन विद द लाइब्रेरीज, एंड आल्सो आई एम डन विद द बुकिश नॉलेज. जो भी कुछ हम बुक्स में पढ़ते हैं ऑब्वियसली वो हेल्पफुल है, अच्छा है, लेकिन क्या हमारी लाइफ में सिर्फ बुकिश नॉलेज इम्पॉर्टेंट है? क्या ये उतना पर्याप्त है, इनफ है हमारे लिए? नो, प्रैक्टिकल नॉलेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. डोंट यू थिंक सो स्टूडेंट्स? Okay, so writer wants practical knowledge. So this road is going to be my mentor. ये जो रोड है, जिस रोड पर मैं चल पड़ा हूँ, वो लाइफ मुझे बहुत सारी चीज़ें बताएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज देगी, और इस प्रकार से मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करूँगा, और जो दुनिया मेरे अराउंड में है, जो दुनिया मेरे सराउंडिंग में है, उस दुनिया को भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ. देन क्यूरलेस क्रिटिसिज्म. क्यूरलेस क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं यानी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेफिक्र हो जाइए. खुद तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, लेकिन दूसरों की क्रिटिसिज्म को बेफिक्री से देखिए और मूव ऑन करते रहिए. Strong and content, I travel the open road. The poet is considering himself as strong and contented with what he is and what he have. राइटर कहते हैं मैं मस्त हूँ, मतवाला हूँ अपनी मंजिल के लिए, मुझे किसी के भी ओपिनियन की परवाह नहीं है. द अर्थ दैट इज सफिशिएंट. I don't want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. यानी ये दुनिया, ये प्लानट मेरे लिए सफिशिएंट है, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स लाइक कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंसेस. जैसे इंडिया में होता है ना, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू दैट ब्लेसिंग्स लेते हैं हम, गुड लक लेते हैं. कोई ज्योतिष है, वो कहता है कि रत्न धारण करो अपनी अंगूठी में, या फिर चांद तारे और ग्रहों का कैलकुलेशन करके हमें बताते हैं कि भाई आपका गुरु अच्छा नहीं है, आपका शनि ठीक है, आपका शुक्र बलवान नहीं है, यानी आपके तारों में, सितारों में कुछ तो को गड़बड़ है. राइटर इन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं. अगेन कॉन्स्टेलेशन का मतलब और भी एक निकलता है स्टूडेंट, जैसे पावरफुल पर्सन. कोई पर्सन अथॉरिटी में है, कोई पर्सन की बहुत बड़ी पहचान है, वो पावरफुल पर्सन है, तो हम क्या करने लगते हैं? उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं. और रीज़न क्या होता है हम उनके इर्द गिर्द घूमते हैं? क्योंकि हमें सिफारिश चाहिए होते हैं, हमें आगे बढ़ना है हमारे लाइफ में, तो हम चाहते हैं कि इस पावरफुल पर्सन से हमारा कुछ काम हो जाए. ओके, जैसे रिकमेंडेशन प्रेफर करते हैं हम. ये सब जहाँ है वही ठीक लगते हैं, और ये जिनके लिए बने हैं ना, उनके लिए काफ़ी है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है. अब ऑब्वियसली स्टूडेंट आप ही ज़रा सोचोगे कि ये चांद तारे, ये हाथों की लकीरों में, माथे की लकीरों में अपनी किस्मत को खोजना, रत्न धारण करना, ताबीज़ पहनना, स्ट्रॉन्ग एंड अथोराइज एंड पावरफुल पर्सन की रिकमेंडेशन लेना, उनकी सिफारिश से आगे बढ़ना, ये सब किसका काम है? ये उन लोगों का काम है जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं. राइट? Next, still here I carry my old delicious burden. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Now look at the first line. Delicious burden. These two terms are quite contradictory and quite paradoxical. Delicious, burden. How come a burden is delicious? Just think about it. Burden जो नेगेटिव क्वालिटी को डिनोट करता है, समथिंग विच इज़ नेगेटिव, एंड डिलीशियस मीन्स समथिंग पॉजिटिव. जैसे हम खाना स्वादिष्ट होता है तो बोलते हैं ना डिलीशियस, यमी. खाना ख़राब होता है तो हम नहीं कहते डिलीशियस. सो ये पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है. और बर्डन, बोझ,
ये निगेशन को दर्शाता है, दोनों एक साथ रखा है और बर्डन को डिलीशियस बोला है। इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे निकलता है स्टूडेंट पैराडॉक्स। अब यहाँ पे बर्डन क्या है, तो राइटर जो अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने साथ, वो मेमोरीज़ को लेकर चल रहे हैं और इन मेमोरीज़ में कुछ अच्छी यादें भी हैं और कुछ बुरी यादें भी हैं। मैं तो कहूँगी स्पेशली बैड मेमोरीज़ हमको ज़्यादा महसूस होती हैं। ओके, यहाँ पर बैड मेमोरीज विच माइट बी द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन मिस्टेक he is carrying with him, and actually he wants to get rid of it, but it seems impossible for the writer to get rid of it. And yes, of course student, it is really very difficult and impossible to कम आउट ऑफ सच मेमोरीज। राइटर क्या कहते हैं, जो पास्ट में मैंने मिस्टेक करी हुई है वो मेरे लिए बर्डन है, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि वो डिलीशियस है, क्योंकि इन मिस्टेक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरा कैरेक्टर बिल्टअप किया है। अब आगे जाकर मैं ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं करूँगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कंसिडरिंग दिस बर्डन ऑफ मेमोरीज एज डिलीशियस। बट ही इज़ कॉन्फिडेंट that his character is filled by these memories, but henceforth he will fill the moment with good memories. अब तक यादों से राइटर भरे हुए हैं, लेकिन अब उनमें इतनी शक्ति है, इतने वो कॉन्फिडेंट है कि अपनी ज़िंदगी के पलों को या लम्हों को वो अच्छी यादों से भर देंगे। I hope my explanation helped you. If you like the way of my explanation, please hit the like button, share it, subscribe it, and do comment the moral of this poem. Till then, bye bye everyone. God bless you all.